Hello students, beta this is your holidays homework. Hope you will enjoy your holidays. Okay beta, listen carefully the holidays homework and do carefully. Okay, thank you. Good morning, students. It's time for summer vacations. So that's why you have to do some holiday homework. So now I am explaining you about your English reader holiday homework. But I have already explained you in the classroom also. I have divided the homework in 4 parts: reading, writing, learning and activity. First, your reading part. In reading part, you have to read chapter 1 and the chapter 3. That chapter we have already done in our class. Chapter 1 name is Don Quixote and the Windmills, and the chapter 3 is Clever Tenali Raman. Now come to our writing homework. In writing homework, you have to write the story of chapter 1 Don Quixote and the Windmills and the chapter 3 Clever Tenali Raman in your own words on A4 sheets. आपको A4 sheets पे दोनों की स्टोरी राइट करनी है. Okay, in short. Now come to the learning homework. You have to learn chapter 3 Clever Tenali Raman. Now come to the activity part. In activity part, I have given you in 2 parts, in audio and in written. In audio, you have to speak the dialogue of Don Quixote. बच्चा चैप्टर 1 में डॉन किहोते एंड द विंडमिल्स ने में डॉन किहोते ने जो डायलॉग स्पीक किए हैं वो आपको डायलॉग्स बोलने हैं और उसकी ऑडियो बनानी है. इट शुड बी मैक्सिमम 2 minutes. ओके, नाउ कम टू द रिटन एक्टिविटी. फर्स्ट यू हैव टू पेस्ट द पिक्चर ऑफ तेनाली रामन. आपको तेनाली रामन की पिक्चर पेस्ट करनी है और उस पर फैक्ट्स राइट करनी है. फाइन. एंड योर सेकेंड एक्टिविटी इज open page number 16 of your book. See this, you have to make these colorful windmills. Okay, क्या करोगे? First of all you will take a paper cup and paint it in any color you want. पहले इसको लो, एक पेपर कप को इसको किसी भी कलर में पेंट कर दो. फाइन. एंड सेट द पेपर कप aside to dry. और उसको ड्राई होने के लिए रख दो. You can use a sketch pen to draw windows and door on the cup. और कप पे ये विंडोज ड्रॉ करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? स्केच कलर्स. फाइन. एंड देन कट 2 strips ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स टू मेक द ब्लेड्स ऑफ द विंडमिल्स. और विंडमिल्स के ब्लेड्स बनाने के लिए आप डिफरेंट कलर का क्या यूज करोगे? स्ट्रिप्स ऑफ पेपर. फाइन. एंड देन प्लेस द स्ट्रिप्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर टू फॉर्म एन एक्स. और ऐसे एक्स बना दोगे, स्ट्रिप को पेस्ट कर दोगे. एंड फिक्स दैम ऑन द कप यूजिंग अ थंब पिन. और थंब पिन का यूज. Hello everyone, I hope you all are enjoying at home. I am Harjeet Kaur, your English grammar teacher. Okay, I have given you holiday homework. Okay, so I am going to explain it to you. In the classroom also I have explained it. Okay, but now again I am going to help you out. Okay, so first of all I have given you picture composition. Okay, picture composition means when one picture is given and you have to compose. Compose means you have to write something about that picture. Okay, so you have to complete it on page number 14, 15, 16 and 17. Okay, and some words are given, some clues are given. Okay, and you have to use that. On second number I have to give you bio sketch. Okay, this bio sketch is given in comprehension book and I have given you on page number 20 and 21. Okay, 3 personalities are there. One table is given. In that table all the details are written about that 3 people and you have to write a short bio sketch about that persons. Okay, so in the classroom I told you how can you write it and all. Okay, after that I have given you letter and application. Letter and application is given in your comprehension book and it is given on
page number 27. Okay, first you have to write letter in your English grammar notebook. Whatever format is given, you have to follow that. Change the date and mention the date on which day you are going to write it. Okay, for example, you are writing on 11 June, so mention the same date. Okay, and write your own address in the letter. Don't copy the address which is given in the book. Okay, same for the application. In the application, write your school name. Okay, write your name and all. That format I explained to you. Okay, so you have to copy it only. Okay, then do revision of grammar topics from chapter 1 to 3. In the classroom we have completed chapter 1, chapter 2, chapter 3. So revise that chapter. If you feel that any doubt is there, note down that doubt. When you come in the July, okay, you can ask me. I will explain each and everything to you. Okay, so picture composition, bio sketch you have to do in comprehension book, and letter and application you have to write in English grammar notebook. Okay. Good morning students. I hope you all are enjoying your holidays. I am Shelly, your maths teacher, and today I am going to explain the holidays homework. So yes students, it's your chapter 1. So you have to do mathematics A full from your maths book. It means जो आपके फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में मैथलेटिक्स ए एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट करनी है आपकी मैथ्स बुक में से. नेक्स्ट वन इज डू मैथलेटिक्स बी अप टू 7 सम. जब आप मैथलेटिक्स ए करोगे तो उसके नेक्स्ट पेज पर बेटा मैथलेटिक्स बी होगी एक्सरसाइज, वो आपको अप टू 7 सम तक करनी है. नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी. सो रीड इट स्टूडेंट्स. काइंडली चेक द लिंक सेंड टू यू इन द क्लास ग्रुप एंड complete your maths activities with the help of this video. It means आपके क्लास ग्रुप में यानी व्हाट्सएप पर जो आपका स्कूल का ग्रुप बना हुआ है उसमें आपके पास YouTube वीडियो का लिंक आएगा. उस वीडियो लिंक को आपने ओपन करना है और उसमें जैसे जैसे आपको एक्टिविटी करवाई जाएगी वैसे वैसे आपने एक्टिविटी करनी है. ओके, सो दिस इज योर हॉलीडेज होमवर्क. एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, आपको ये जो एक्सरसाइज है मैथलेटिक्स ए एंड बी ये आपको बुक में ही करनी है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग. सो हैव अ नाइस डे. थैंक यू. Hello students, I hope all of you are doing fine and enjoying your summer vacations. Students, today I am here to discuss about the holidays homework assigned to you. So first one is read chapter 3 and 4 and try to solve the book work. आपको चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 रीड करना है और उसका बुक वर्क ट्राई करना है, सॉल्व करना है. नेक्स्ट इज पेज नंबर 28 वर्ड ग्रिड पजल. आपकी बुक में पेज नंबर 28 पे वर्ड ग्रिड पजल है, वो पजल आपको सॉल्व करना है. उसमें ऑक्यूपेशनल वर्ड्स छुपे हुए हैं, यू हैव टू फाइंड देम. नेक्स्ट वन इज प्रिपेयर अ स्मॉल फर्स्ट एड बॉक्स विद 5 to 10 इसेंशियल आइटम्स. आपको एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स प्रिपेयर करना है जिसमें 5 to 10 इसेंशियल आइटम्स होनी चाहिए जो इन केस ऑफ एमरजेंसी हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मेक अ पोस्टर, सेव वाटर, सेव लाइफ. ऑल ऑफ यू नो हाउ टू मेक अ पोस्टर, सो यू हैव टू मेक अ पोस्टर showing the theme save water, save life. Next one is go green, beat the heat. As you all know, 5th June is World Environment Day. So you have to grow a plant. Any plant you can grow. You can take tomato seeds, lemon seeds, tulsi plant, rose plant. Any one plant you have to grow at your home. Take care of it and water it twice daily. आपको उसकी proper care करनी है और उसे रोज़ पानी देना है. Click picture with grown up baby plant at the end of vacations and paste it in the activity book. आपको at the end of vacations 2-3 days पहले, vacations के end होने से पहले इस baby plant के साथ as वो थोड़ा सा grow कर जाएगा, वो baby plant seed से baby plant बन जाएगा, उसके साथ आपको पिक्चर क्लिक करनी है, उसका प्रिंट निकलवाना है और अपनी एक्टिविटी बुक में पेस्ट कर देना है. नेक्स्ट वन इज़ नोट डाउन द फॉलोइंग नंबर्स इन योर डायरी एंड एक्टिविटी बुक. कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं जो इन केस ऑफ एमरजेंसी हमें यूज़ करने होते हैं या हमारे काम आते हैं,
वो नंबर आपको अपनी डायरी पे और आपकी एक्टिविटी बुक दोनों पे नोट डाउन करने हैं. फॉर एग्जांपल योर फैमिली डॉक्टर, एम्बुलेंस, योर पेरेंट्स, योर वैन ड्राइवर, स्कूल, एट्सेट्रा. ओके. नेक्स्ट वन इज ओन योर एक्टिविटी बुक. मेक योर ओन बैलेंस डाइट चार्ट फॉर 5 consecutive days to check on whether you are eating healthy or unhealthy. आपको कोई भी समर वेकेशन में 5 डेज़ लगातार आपने चेक करना है कि आप रोज़ क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट. आपने सुबह उठ के चेक करना है, सुबह उठते से आपने क्या खाया है, ब्रेकफास्ट में क्या खाया है, लंच में एज अ स्नैक क्या खाया है, एंड एट नाइट आपने डिनर क्या लिया है. तो आपको उसका एक बैलेंस डाइट चार्ट बनाना है. उसमें आपने चेक करना है कि आपने हेल्दी खाया है या अनहेल्दी खाया है. Hello my dear students, today I am going to explain you your reasoning pattern activity. You can make patterns like this on A4 size white color sheet with the help of sketch pens or different colors, slanting lines, curvy lines, and you can also make your own patterns in any creative way. It is not compulsory that you have to do the patterns I am showing you on the screen, but you can do this also. Like this, curvy and slanting lines, different colors, sketch pen you can also use. Like this, you can decorate your patterns like this way also. Students, apart from this, you can also use vegetables and watercolors and make impression and do your own pattern like this. You can make different types of patterns like I am showing you, like this. Yes बच्चों, apart from this activity you have to revise your first 2 chapters of reasoning in your holidays homework. Okay my dear students, you can also use matchsticks and make your patterns or different colors like I am showing you. Okay students, bye, enjoy your holidays. Hello students, beta this is your computer holidays homework for class 4th. लर्न चैप्टर 1 and 2 बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स. आपकी बुक में बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 and 2 की डन है एंड चेकड है. उसे आप लर्न करोगे और प्रैक्टिस करोगे. एक्टिविटी पार्ट में आपका पेज नंबर 112 to 115 बुक में आपने वो एक्टिविटी में वो पेजेस को सॉल्व करना है. वो ज़्यादातर गेमिंग पार्ट है. इसमें आपने लाइक कोई डाइस गेम है या फिर लूडो गेम है, उस गेम्स को आपने सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करना है. उसमें जस्ट क्वेश्चनिंग है लाइक हाउ मैनी टाइप्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, रैम एंड रोम. तो वो आप सिंपल क्वेश्चन को आप सॉल्व करते जाओगे और एक लूडो की गेम है उसको सॉल्व करते जाओगे. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी इज ड्रॉ और पेस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस ऑन स्क्रैप शीट. A4 स्क्रैप शीट पे आपने पिक्चर्स पेस्ट करनी है या फिर आप ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो. डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं आपको पता है. चैप्टर 1 में हार्ड डिस्क है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव. इनकी पिक्चर्स को आपने कट करके मार्केट से आपको अवेलेबल हो जाएंगी पिक्चर्स, किसी बुक स्टोर से ले सकते हो. उसमें पिक्चर्स को कट करके उनके प्रॉपरली नेम के साथ आपने एक एक्टिविटी बनानी है कलरफुल स्क्रैप शीट पे. ओके बेटा, थैंक यू. या स्टूडेंट, देखिए अब जैसा कि आपको बताया कि इन वीडियोज़ में हम क्या कर रहे हैं, आपका हॉलीडे होमवर्क जो हमने दिया है वो डिस्कस करने जा रहे हैं. तो आपको बच्चे ज़्यादा कुछ नहीं, हमने सिर्फ आपको 20 पेजेस दिए हैं. 10 पेज आपको अपनी इंग्लिश राइटिंग बुक के करने हैं और 10 पेजेस ही आपको अपनी हिंदी राइटिंग के करने हैं. और ये पेजेस आपको अलग से नोटबुक लगाने की नीड नहीं है. बच्चे सबको मैंने हिंदी की और इंग्लिश की राइटिंग नोटबुक्स ऑलरेडी लगवाई हुई हैं. तो आपने अपनी उन्हीं राइटिंग नोटबुक में 10 पेज इंग्लिश राइटिंग के करने हैं और 10 पेज हिंदी राइटिंग के करने हैं. अब उन 10 पेजेस में आप क्या लिखोगे, आपने क्या करना है बच्चे. देखो ये आपकी बज़वर्ड और हिंदी गुलमोहर पाठ्य पुस्तक है. तो बज़वर्ड के आपका फर्स्ट और थर्ड चैप्टर हो चुका है. तो आपने उन 10 पेजेस के अंदर क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड लेसन की स्टोरी ही लिखनी है. इससे देखो आपकी रीडिंग भी हो जाएगी और आपकी राइटिंग भी हो जाएगी.
दोनों काम हो जाएंगे। आपको देख देख के लिखना है, 10 पेजेस अपनी राइटिंग के करने हैं। फर्स्ट चैप्टर की लीजिए, उसमें एक पैराग्राफ उठाइए, उसे 1 पेज पे राइट करो। फिर सेकंड पैराग्राफ उठाओ उस स्टोरी का, उसे राइट करो। ऐसे ही थर्ड पैराग्राफ। तो आप ऐसा करते हैं 5 पेजेस फर्स्ट लेसन की स्टोरी के करिए और 5 पेजेस थर्ड लेसन की स्टोरी के। इस तरह से आपके 10 पेज राइटिंग के भी हो जाएंगे और साथ साथ आपकी बज़वर्ड की रीडिंग भी हो जाएगी। ओके, इसी तरह आपकी ये गुलमोहर पाठ्य पुस्तक है, इसमें भी आपके जो भी लेसन हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन्हीं की स्टोरी आपने कहानी जो 10 पेजेस अपनी राइटिंग के कर देनी है। ठीक है, आपने देख देख के करने हैं, अपनी मात्राओं की डॉट की कोई मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, अगर इसके अलावा भी आप अगर कोई अपनी पसंद से कोई स्टोरी लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, बट आपका मोटिव स्टोरी लिखना नहीं है, आपका मोटिव अपनी राइटिंग इम्प्रूव करना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपने 20 पेजेस करने हैं, 10 हिंदी के और 10 इंग्लिश के, नीट एंड क्लीन वे में करने हैं। डेली 1 पेज करना है, 30 मिनट आपने अपनी राइटिंग के लिए देनी है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर हॉलीडेज।